আজকের পরে ওই ডাক্তারবাবুর কি হবে তিনি কিছু জানেন না? না, সুরক্ষা নিয়ে আমরা চিন্তিত, সুরক্ষা নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে যা কিছু হতে পারে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওনাকে মারিয়েও দিতে পারে। আমি বলছি, পরিষ্কার বলছি, এবং ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরা বলছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওনার প্রতিবেশীর সাথে কি ধরনের আচরণ করতে পারেন আপনাদের সকলের আইডিয়া আছে, আমারও সকলের আইডিয়া আছে। আমরা সেই জন্য ওনার সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তিত, এবং আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে আশা করব, বিশেষ করে রাজ্যপালের কাছে আমরা আবেদন জানাবো এই ডাক্তারবাবুর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, ডিজিকে বলে এই ডাক্তারবাবুর যেন সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। অভিষেক ব্যানার্জির বাড়ির সামনে এত সুরক্ষা যদি থাকতে পারে, 2-4টে পুলিশ ডাক্তারবাবুর জন্য ভয় পাচ্ছেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে না তো? চিকিৎসক যদি যেতে হয়, বাঙালিদের থেকে লজ্জার আর কি আছে? বাঙালি তখন দেখতে পাচ্ছে বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে ভারতে টেনে এনে আনছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট ব্যাংকে। আর এই ধরনের প্রথিতযশা যারা ডাক্তারবাবু, তাদেরকে ভারতে ফিরে আসার ইচ্ছে থাকলেও তাদেরকে ভারত ছেড়ে পালানোর জন্য ব্যবস্থা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কি বার্তা যাবে আজকের এই ডাক্তারবাবুকে যেভাবে অ্যারেস্ট করা, কি বার্তা যাবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের ডাক্তারের, কি বার্তা যাবে? না, অন্ধের কি দিন কি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের রেপুটেশন বলে কিছু রেখেছে? কয়লা চুরি, বালি চুরি, মন্ত্রীর উপরে হামলা, জেপি নাড্ডার উপরে হামলা, শিক্ষকের 26,000 চাকরি চলে যাওয়া, অভয়াকাণ্ড, তাকে ধামাচাপা দেওয়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোলের ছেলে সন্দীপ ঘোষ এখন এই মুহূর্তে জেলে, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বান্ধবী সহ জেলে, আরও কয়েকটা অপেক্ষা করছে, যাবো করছে, কোন সময় যাবে, কোন সময় পা পিছলে যাবে বলে বোঝা যাচ্ছে না, ভাইপো কোন দিন ঢুকে যাবে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। আর কালকে যদি আমি সময় পাই, পুলিশের চুরির দুর্নীতির কাগজ আমার কাছে এসেছে, কালকে ওটাও দেখাবো, নতুন জিনিস দেখবো। এতদিন শুনতাম চোর চুরি করে পুলিশ ধরে, এবার পুলিশের চুরির एफआईआर কালকে দেখাবো। आज तक हमें पता नहीं चला, मुझे जहाँ तक बताया गया 155 ऐसा कुछ धारा लगाया गया है, जिसका कारण हमें समझ में नहीं आया। अभिषेक बनर्जी का घर था, क्या था, जबकि इलेक्शन के समय दिए गए हलफनामा में अभिषेक बनर्जी जी बता रहे हैं उनके पास कोई घर नहीं है। अगर ये है तो कौन सा सही है? पुलिस बोल रहे वहाँ अभिषेक बनर्जी का घर है, किस कारण से रोका गया, कोई कारण अभी तक बताया नहीं गया। और मुझे तो अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, मैं आई एम ए पॉलिटिकल लीडर। जिस तरीके से डॉक्टर राजेश सूर्य बनर्जी को, जिन्होंने 25 साल यूके में फेम के साथ डॉक्टरी की है, उनको जिस तरीके कॉलर से पकड़कर, मारकर, पीटकर उनको उठाया गया, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, और उनको आप सबको जानकारी होगी, ही इज नॉट ए इंडियन सिटीजन नाउ, वो यूके के सिटीजन है, यूके का पासपोर्ट है, फिर भी उन्हें जिस तरीके से उठाया गया और इस तरीके से उनकी अपमान की गई, एक पूरे डॉक्टर समाज की अपमान है। पूरे विदेश में भी डॉक्टर देख रहे हैं कैसी हालत पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने बना दी। दादा, आप एक सेंट्रल मिनिस्टर है, विदाउट परमिशन, विदाउट आपके जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको, उनके बिना आपको कोलकाता पुलिस की गाड़ी में उठा के लाया गया, ये कितना उचित? देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए 2 जान कीमती है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की जान, इनके परिवार की। बाकी किसी के साथ कुछ भी हो जाए, बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, पश्चिम बंगाल पुलिस की कोई उसमें इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मुझे पुलिस के गाड़ी में बैठाया के लाया गया विदाउट माई सिक्योरिटी। पुलिस की गाड़ी की कांच खुली हुई थी, क्योंकि नॉन एसी गाड़ी थी, स्वाभाविक है कांच खुला रहेगा, कोई भी आके गोली मार सकता था, चाकू भी मार सकता था। क्या करेगा पुलिस में? विंडो के पास खड़ा, विंडो पे पास बैठा हुआ था। It is the total violation of the security norm of a person who has been protected by the central government through the jet category security. आपने अमित शाह को इसकी जानकारी दी है? अभी देंगे, अभी बाहर निकला हूँ मैं, पूरी तरीके से विस्तार से इसको लेकर हम माननीय गृहमंत्री जी को भेजेंगे। एक चिट्ठी आपके नाम से गई है? एक चिट्ठी गई है, उसमें तो हमने प्रिलिमिनरी भेज दिया है, आगे जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है पूरा, उस विषय में रिपोर्ट भेजेंगे, उसको भी रिपोर्ट भेजेंगे। हाल की 10 दिन की घटनाओं को देखें तो 2 बार आप जेल जा चुके हैं। नहीं, यही डेमोक्रेसी है ना पश्चिम बंगाल की, इसलिए ममता बनर्जी बोलती है ना हम इमरजेंसी डे नहीं मनाएंगे। क्यों बोलती है? क्योंकि इमरजेंसी तो वो लगा के बैठी हुई है। अगर किसी इलाके में आप नहीं जा सकते अकेला, ऐसा नहीं कि मैं कार्यकर्ता लेके जा रहा था, मैं अकेला विथ माई सिक्योरिटी जा रहा था। हाँ, हाई सिक्योरिटी जोन होता है, हमें समझ में आता है, तो वहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप सिक्योरिटी लेके नहीं जा सकते, या मेरा सिक्योरिटी गन रखकर बिना आर्म्स जा सकता है। बहुत सारी जगह में ऐसे रूल्स है, हम मानते भी है। राजभवन में घुसते हैं विदाउट आर्म्स घुसते हैं हमारे सिक्योरिटी।
तो ऐसे नियम हो सकते हैं। अभिषेक बनर्जी बड़े व्यक्ति हैं, देश को बहुत सारा ओलंपिक गोल्ड दिया है, नोबेल पुरस्कार दिया है, तो उनकी तो सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुरक्षा नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। घर में स्विमिंग पूल है, एस्केलेटर है, इसका फोटो निकल जाएगा, वीडियो निकल जाएगा, तो इसीलिए रोका जाता है लोगों को आजू बाजू में जाने से। अभिषेक, यहाँ पे एक एमपी है और आप एमपी के साथ में मिनिस्टर हैं। अगर कैटेगरी वाइज सिक्योरिटी की बात करें तो आपका ज्यादा बनता है। एकदम ज्यादा है, कानून के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन यह कानून चलता तो नहीं है। अब मालूम नहीं बांग्लादेश या पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ होगा अभिषेक बनर्जी ज्यादा हायरार्की ऊपर होते होंगे, इसलिए यहाँ पे इंडिया का कानून कहाँ चलता है। कल मेरे साथ वहाँ पे जो हुआ डायमंड हार्बर में, बजबोज में, वो कानून के अधिकार क्षेत्र में था क्या? आज पश्चिम बंगाल दिवस हम मना रहे हैं, हमें वो भी मनाने नहीं दिया जा रहा है। इज इट ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में ऐसा होता है क्या? आज के दिन 1947 में इसी तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में बंगाल के, उस समय के बंगाल के यूनाइटेड बंगाल जो था, उस प्रोविंस के पश्चिम प्रांत के लोगों ने, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे थे हिंदू 58, उन्होंने वोट देकर पश्चिम बंगाल स्थापना की नींद रखी थी। इस दिन को आप स्वीकार नहीं करेंगे, हिस्ट्री को भूला दिया तो पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान जैसे मुगल काल के बाद, यानी इस्लामिक शासन के पीछे वाला अध्याय जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इसको स्वीकार नहीं करता, इस हिस्ट्री में उनको पढ़ाया नहीं जाता। उसी तरह ममता बनर्जी बंगाल की हिस्ट्री में परिवर्तन कर रहे हैं, पाकिस्तानीकरण कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए तो क्या बोल सकते हैं, घृणा। और उनके जब वो बात करते हो मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो बात नहीं करते, कैमरा के बाहर जब बात करते हैं तो उनको देखकर मुझे एक ही चीज लगता है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दादा आज कुणाल घोष ने बोला कि बांग्ला दिवस है पहला वैशाख, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? पहला वैशाख अगर बांग्ला दिवस है, हमें कोई आपत्ति नहीं, पहला वैशाख तो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है। लेकिन आज हिस्टोरिकली पश्चिम बंगाल क्रिएशन हुआ था, इसे अस्वीकार करना मतलब पाकिस्तान जैसा इतिहास पढ़ाना। पाकिस्तान में बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है मुगल काल और इस्लामिक शासन के पहले वाला जो है, जिसे गोल्डन एज ऑफ एरा बोलते हैं हिस्ट्री का, भारत का, उस समय के भारत का, उसको पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि दैट इज द हिंदू, दे कंसीडर इट इज ए हिंदू हिस्ट्री। उसी तरह ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की इतिहास का इस्लामीकरण, पाकिस्तानीकरण कर रहे हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।